Students, continuing with practice set 3.1, question number 5 says that classify the following polynomials into linear, quadratic and cubic polynomials. Linear, quadratic and cubic. Linear polynomial is a polynomial where the variable has power 1. Quadratic is the variable has the degree or the power, highest power as 2. Cubic is where the variable has the degree or the power as 3. Linear मतलब 1, power 1. Quadratic मतलब power 2. Cubic मतलब power 3. See the first question. 2x square plus 3x plus 1. What is the highest power? That is 2. So it is linear, quadratic or cubic? Yes, it is quadratic. Any props? No props. Second question. 1. इसके ऊपर कुछ नहीं है तो सबका मालिक 1. So it is linear. Third, power 1. It is linear. Fourth, power 3, it is cubic. Fifth, power 2, it is quadratic. Sixth, power 3, it is cubic. पूरा spelling लिखो. Right? This is a quadratic polynomial, linear, cubic polynomial. पूरा spelling लिखो. Is this clear? Okay, easy था ना? Next question says that write the following in the standard form. Standard form मतलब greater to smaller powers. सबसे बड़ा पावर ले लो और छोटे पावर तक जाओ, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल हियर दिस पावर इज m रेज टू 3 बराबर प्लस m स्क्वायर. कोई टर्म है क्या? नहीं है तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट तुम लोग बोलेंगे नो हम लोग को लिखना है तो लिखो ना 0m square, because you multiply any number by 0 becomes 0, no value. So if you write 0m square we'll also do, if you don't write also will do. Okay, plus 3 2 फिर 1 का पावर वाला टर्म है क्या? है 5m प्लस नंबर है क्या? है नंबर मतलब पावर रेज टू 0. अरे बराबर है तो 3 2 1 और लास्ट में 0. देखो ना 0 1 2 3 डिसेंडिंग ऑर्डर, ग्रेटर टू स्मॉलर. 3 2 1 0. दिस इज कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड फॉर्म. अरे बराबर है. दूसरा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अच्छा है, चलो ना देखते हैं. सबसे बड़ा पावर कौन सा है इसमें? 5. दैट मींस y5. ओके, फिर 4 है क्या? देखो है 2y4. 3 है क्या? देखो है प्लस 3y क्यूब. 2 है क्या? देखो है माइनस y स्क्वायर. जो टर्म का साइन है वही रहेगा. डोंट राइट प्लस, वेट फॉर द साइन, लुक एट द टर्म, सी द साइन एंड देन राइट द टर्म. y स्क्वायर फिर y रेज टू 1 है क्या? है माइनस 7y. फिर कोई नंबर है क्या? है माइनस 1/2. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. 5 4 3 2 1 एंड देन 0. अरे बराबर, कौनो तकलीफ? नो प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 7 says write in the coefficient form. Coefficient form, always remember that coefficient form comes after standard form. Coefficient form comes after standard form. If you know the standard form, you will know the coefficient form. If you know the standard form, you will know the coefficient form. Standard form समझ में आ जाएगा तो coefficient form भी समझ में आ जाएगा. Okay, so let's begin. I will write x cube minus 2. So the power is 3. 2 का कोई पावर है क्या? x square नहीं है तो प्लस 0x square प्लस x रेज टू 1 करके भी कुछ है क्या? नहीं है, प्लस 0x रेज टू 1 और फिर नंबर है क्या? है -2. ओके, सो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म. देखो ना 3 2 1 0.
0 1 2 3, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, कुछ नहीं है तो सबका मालिक एक, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ द कोएफिशिएंट फॉर्म, हाउ टू गेट द कोएफिशिएंट फॉर्म? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. कोएफिशिएंट means taking the numbers. Coefficients are the numbers. Coefficients are the numbers which are besides the variable. For example, पहला वेरिएबल है x क्यूब, बराबर ना, उसके बाजू में कोएफिशिएंट क्या है? 1, x स्क्वायर के बाजू में क्या है? 0, x के बाजू में क्या है? 0, x रेज टू 0 के बाजू में क्या है? -2. ओके, सो 1 0 0 -2 is the coefficient form. Is this clear? Clear. Second is 5y. तो फर्स्ट क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म, देन कोएफिशिएंट फॉर्म. फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म, देन कोएफिशिएंट फॉर्म. चलो 5y raised to 1. अरे बराबर, सो y raised to 1 हो गया ना, तो 1 के बाद क्या आता है? 0. कोई नंबर है क्या? कोई नंबर है क्या? नहीं है, तो क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, 0. y raised to 0. 0 तो पहले से 0 ही है, and y raised to 0 means 1, तो 0 into 1 is 0, so it will become 5y. Is this clear? It will become 5y. So what will be the coefficient form? Number is 5, comma, number is 0. Easy. Next is 2m4 minus 3m square plus 7. तो 2m4 plus m4 के बाद 3 है क्या? नहीं है. 0m3 माइनस 3m स्क्वायर, 2 है ना, 1 है क्या? नहीं है. 0m, फिर नंबर है क्या? है 7. अरे बराबर. सो व्हाट विल बी द नंबर्स? कोएफिशिएंट फॉर्म 2 0 -3 0 7. 2 0 -3 0 7. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, -2/3 ऑलरेडी एक नंबर है, बराबर. इसके आगे वेरिएबल नहीं है. सपोज वेरिएबल x है, तो उसके ऊपर क्या रहेगा? 0 ही रहेगा, क्योंकि x raised to 0 is 1. तो -2/3 into x raised to 0 मतलब 1 is -2/3. So what is the coefficient form? सिर्फ नंबर क्या है? बस एक ही नंबर है, -2/3. अरे बराबर है. क्लियर है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर ये नहीं आएगा तो आगे के एक्सरसाइजेस नहीं आएंगे, इतना याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्जन ऑफ द कोएफिशिएंट फॉर्म इनटू द इंडेक्स फॉर्म. सो कोएफिशिएंट फॉर्म इनटू द इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म इनटू द इंडेक्स फॉर्म. नाउ हाउ टू गेट the coefficient form into the index form? To get into the index form, we need a variable, and suppose the variable, that is alphabet, is x. For example, the first question, that is 1 2 3. So write 1, write 2, write 3. जगह छोड़ छोड़ के लिखो. ओके, साइन प्लस, इसका भी प्लस ही है, बट पहला नंबर है तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर है. पहला x रेज टू 0, x रेज टू 1, x रेज टू 2. बट x रेज टू 0 हम लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज इट इज 1. ओके, सो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज द फर्स्ट आंसर. इजी लगा. मेथड कैसा लगा? मस्त है मेथड. एक बार फिर से देख लेते हैं, सेकंड वाला भी देख लेते हैं, मेथड अच्छा लगेगा तुमको. देखो सेकेंड वाला 5 0 0 0 -1, बराबर ना. क्या करने का मैंने बताया? 5 थोड़ा स्पेस देके 0, फिर 0, फिर 0, फिर -1. इसका साइन नहीं दिया है, प्लस ही रहेगा.
प्लस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा। फर्स्ट टर्म है तो साइन लिखने की जरूरत नहीं है। कहां से स्टार्ट करते हैं? लास्ट से ऐसा आने का, असेंडिंग आएंगे तो तुमको इजी पड़ेगा। x रेस टू 0, x रेस टू 1, x रेस टू 2, x रेस टू 3, x रेस टू 4। मजा आ रहा है? अरे बराबर है। बट राइटिंग 0 0 0 इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब 0 into any number is 0, so don't write this term and this term. Only write 5 x raised to 4 minus 1. x raised to 0 भी लिखने की जरूरत नहीं है, write minus 1, बस that's it, this is the answer. अरे बराबर है। Similarly this one, the last one, that is the third one, minus 2 2 minus 2 2, तो कैसे लिखने का? इधर लिख दूं क्वेश्चन तो तुमको अच्छा से समझ जाएगा। minus 2 2 minus 2 2, शायद ऐसा ही समझ। सो राइट minus 2, स्पेस दो, राइट प्लस 2, राइट minus 2, राइट प्लस 2। पहला x रेस टू 0, x रेस टू 1, x रेस टू 2, x रेस टू 3, दिस इज द आंसर। बस हो गया, इजी। नंबर्स लिख दो, स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, x रेस टू 0, x रेस टू 1, x रेस टू 2, x रेस टू 3, x रेस टू 4, कितना भी है लिख दो। बीच में 0 0 रहेगा तो वो कट कर दो, बस दैट्स इट। The last question of this practice set is to classify quadratic, cubic, linear, binomial, trinomial and monomial. Very basic question. So the first one is x raised to 1. 1 मतलब linear. So x plus 7 is linear. अरे बराबर है। But there are two terms also. So it is binomial also. So it is binomial. X plus 7 is binomial. First one. Any props? No props. आगे चलते हैं। x square is monomial, single term. But because it is square 2, so it becomes quadratic also. So it is quadratic, x square. X cube, it is 3, so it becomes cubic. So it is cubic, x cube plus x square plus x plus 5. अरे बराबर। But there are how many terms? 1 2 3 4, 4 टर्म है ना, तो बाइनोमियल मतलब 1, ट्राइनोमियल 3, मोनोमियल मतलब 1, बाइनोमियल मतलब 2, तो नहीं हो सकता है ना। आगे 1 2 3, how many terms? 3 terms, ट्राइनोमियल 2x square plus 5x plus 10. Power is 2, so it becomes quadratic. 2x square plus 5x plus 10. Next, x cube, power is 3, so it becomes cubic. X cube plus 9. But how many terms? 2 terms, so it becomes a binomial also. X cube plus 9. Next, x square, that means quadratic. 3x square plus 5x. How many terms? 2 terms, so it becomes a binomial also. 3x square plus 5x. अरे बराबर है, तो लीनियर एक ही है। x रेस टू 1 का पावर 1 नहीं, अरे बराबर है।